Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the previous lecture, we were discussing about the slope of the line, and the last thing we discussed was a special case in which the line is now lying on the x-axis, or it is lying parallel to the x-axis. Let's find the slope of that line. So let's say we have got a line which is parallel to the x-axis, and we will name 2 points on this line. So we have got 2 points, P2 and P1, whereas P2 is 5, 3 and P1 is equivalent to 15, 3. Let's find out the slope of this line using the formula m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Solving it further, we will have the value of y2 in this case is 3 minus y1, which is 3 minus 3 divided by x2 minus x1. x2 in this case is equal to 5 minus x1, which is 15. So this is equivalent to 0 divided by minus 10, and we will have answer equivalent to 0. So this proves whenever we have a line which is parallel to the x-axis, the slope will remain equivalent to 0. So जब भी आपके पास एक लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, आपके पास ऐसी लाइन की स्लोप हमेशा 0 के इक्वलेंट आएगी. ठीक है जी? Is this clear to you? All right, let's. सर ये ओनली एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है या वाई एक्सिस के भी? So I've already solved, Bazi, I have already solved the y-axis case. जब भी आपके पास लाइन y-axis के पैरेलल आएगी तो ऐसी लाइन की स्लोप हमेशा इन्फिनिटी के इक्वलेंट आएगी. ठीक है? सो हमने 3 स्पेशल केसेस देखे थे, जिसमें पहले 2 केसेस में ये कि अगर लाइन y-axis के पैरेलल है तो इन्फिनिटी है, अगर x-axis के पैरेलल है तो ऐसी लाइन की स्लोप आपके पास 0 के इक्वल है. ठीक है? सही है, सही. All right, now let's solve few examples. So I'm going to eliminate this parallel case and perpendicular case. All right. Let's say now we have got, let's solve some example. हमें यहाँ पे जो है ना 2 points दिए हुए हैं. So we've got 2 points which are given to us. The first point which we have is A is equivalent to -1, 4 and B is equivalent to 3, 2. All right, now let's solve this. So हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसकी हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है. So using this formula, which is y is equivalent m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is equivalent to y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है 2 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास इस केस में क्या आ रही है आपके पास 4 divided by x2 minus x1. x2 in this is 3 minus x1 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 के इक्वलेंट. So solving it further, we will have
-2 divided by 3 plus 1 is 4. So going ahead, this is -1 by 2, which is the slope of this line. So the eventually we'll have a slope -0.5. इस लाइन की स्लोप हमारे पास -0.5 के इक्वलेंट है। याद रखें, जब कभी आपके पास 0.2 बाद में आए, नीचे वाली साइड पे आ जाए, ऐसी लाइन की स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। और जिस लाइन में आपका सेकंड पॉइंट या P2 आपके पास ऊपर वाली साइड पे आ जाए, क्योंकि हमेशा इससे ये पॉइंट का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्डर चेंज ओवर कर देते हैं तो आपके पास लाइन की स्लोप वो भी चेंज हो जाती है। अगर आपके पास सेकंड पॉइंट बाद में आ रहा है और फर्स्ट पॉइंट पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है स्लोप नेगेटिव साइड पे होगी। याद रखें, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स अ नेगेटिव, द स्लोप, द रिजल्टेंट स्लोप विल बी अ नेगेटिव स्लोप। ठीक है जी। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Fairly very simple topic you have already gone through, but this is on the other side, this is very important from engineering prospect as well. Alright, so हमारे पास एक और इक्वेशन की एक और लाइन गिवन है जिसमें b की वैल्यू है -2, -1 और a की वैल्यू है 2, 5, whereas m in this case is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So putting the values further into this equation, this will become y2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? Yes, can somebody tell me what is y2 in this case? -1. y2 is -1. How? y2 is -1? 5. 5 है सर। Yes, y2 is 5 in this case. याद रखें कि अच्छा, अगर मैं इसको a और b की फॉर्म में कर रहा हूं तो आपके पास b जो है ना, मैं यहाँ पे b को मैं ले रहा हूं आपका 0.1 और a को मैं ले रहा हूं आपका 0.2। ठीक है। So naming is very important whenever you're talking about the slope. So you have to decide as if line इस साइड से ऊपर जा रही है या फिर लाइन नीचे वाली साइड पे आ रही है। It can go in the opposite side as well. सर ये हमें पता होगा कि 0.1 कौन सा 0.2 का? नो, ये कभी भी नहीं पता होता बेटा, ये तो कभी भी नोन नहीं होता। ठीक है, हमेशा आप जब भी स्टार्ट ओवर करते हैं तो आप -x एक्सेस से जाना स्टार्ट करते हैं। सो -x एक्सेस के ऊपर जो भी पॉइंट आए वो आपका फर्स्ट पॉइंट है, और फिर आप पॉजिटिव x एक्सेस पे जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बिकॉज यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दिस इज -∞ एंड यू गो टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया? So that's why in this case this is the first point, this is the second point. So first point in this case was the B, and the first is the second point is the A. So whereas the value of y2 is 5 minus the value of the point 1, which is -1, divided by x2, which in this case is 2 minus -2. Solving it ahead, this will become 6, because 5 -1 with -1 will turn to be +1. So 5 plus 1 is 6, and 2 minus 2 will be 2 by 4. This will be equivalent to 3 by 2. So the slope of this line is 3 by 2. ठीक है जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
जी सर। किसी का कोई सवाल हो इसमें से तो यू में आस्क मी। सर ये दोबारा समझा दें, x1 y1 कैसे सिलेक्ट करने। x1 y1 कैसे सिलेक्ट करने हैं, आप हमेशा माइनस एक्स एक्सिस से आना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माय माइनस x axis side, this is my plus x axis side. So whenever you start over, आप माइनस एक्स एक्सिस से आना स्टार्ट करते हैं और जो पहला पॉइंट आता है माइनस एक्स एक्सिस में आता है, फिर उसके पास आपके पास प्लस एक्स एक्सिस में आता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सर रहे हैं। अगर ये डायग्राम ऑपोजिट हो जाए सर, मतलब ये दूसरी साइड पे आ जाए बी और ए दूसरी साइड पे चला जाए, तो फिर किस अच्छा, तरह अगर ये डायग्राम ऑपोजिट साइड पे आ जाए फिर भी Yes, sir. स्लोप विल रिमेन द सेम अनलेस एंड अनटिल आप स्पेसिफिकली इसमें मेंशन ना करें कि अब ये लाइन बेसिकली यहां से यहां नहीं जा रही, ये नीचे से इस साइड पे नहीं जा रही, अब ये लाइन किस साइड पे जा रही है, अब ये लाइन इस ऑपोजिट साइड पे जा रही है। नहीं सर, इनके एक्सेस चेंज कर दें, मतलब बी को दूसरे एक्स पे ले आए और ए को इस साइड पे। यही मैं बता रहा हूं, अगर मैंने अब इसके एक्सेस चेंज कर दिए ना, ठीक है, नाउ दिस इज बी एंड नाउ दिस इज ए। लेकिन इन जनरल इफ यू आस्क मी फॉर सॉल्विंग दिस, नाम चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल यू स्पेसिफिकली टेल कि मेरा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है और सेकंड पॉइंट मेरा कौन सा है। ठीक है, तब आपकी स्लोप चेंज ओवर होती है। सो इन जनरल इसका मतलब है कि जब भी जहाज टेक ऑफ करते हैं ना, तो यूं करके टेक ऑफ यूं करता है जहाज, ये रनवे पे आया और ये टेक ऑफ कर गया। ठीक है, सो फर्स्ट जहाज की स्लोप 0 होती है, ग्रेजुअली यू इंक्रीज द स्लोप एंड इट टेक्स ऑफ। now we have the opposite side, ये जहाज है, now this is parallel to x axis, this has to land। जब जहाज लैंड करता है तो इसकी स्लोप नेगेटिव साइड पे होती है। इट कैन नॉट हैपन कि यूं करके ऐसे टेक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो जहाज उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली अगर आप इसको देखें तो आप माइनस एक्स एक्सिस से अपना काउंट ओवर को स्टार्ट करते हैं। जो पॉइंट माइनस एक्स एक्सिस पे होता है वो आपका स्लोप का फर्स्ट पॉइंट होता है। अच्छा जी, सारे लोग ना ये प्रॉब्लम ना सॉल्व करें। आपने क्या करना है कि एक लाइन की इक्वेशन मुझे बतानी है। एक ऐसी लाइन है this is the last problem for today's lecture. So we have got a line which we have got a line linear equation. So that's what we have to find linear equation for the line through A 1,7 and B is -3,2। सो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व कर रहा होता हूं तो व्हाट आई डू, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सबसे पहले इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, बिकॉज देन थिंग्स गेट इजियर फॉर यू और आपको नजर आ जाता है कि चीजें एक्चुअली हैं किस तरह। सो हम इफ यू सी दिस, सो ए पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसकी एक्स की वैल्यू है 1,7। सो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। सो ए 1,7 का पॉइंट है और B ऐसा पॉइंट है जिसकी वैल्यू क्या है -3,2। सो -3,2 दिस इज अ पॉइंट समथिंग लाइक ओवर हियर। सो यूं करके -3,2। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो
मुझे देखने से ही पता लग जाता है कि इसकी स्लोप मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव स्लोप आएगी, बिकॉज अगर हम पहले यहां से माइनस एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आ रहा है, ये 3,2 वाला पॉइंट आ रहा है, विच इज द बी पॉइंट इन दिस केस। ठीक है, सो हम पहले इसकी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। सारे लोग इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, बताएं क्या स्लोप आ रही है। प्लीज टेल मी द स्लोप ऑफ दिस। स्लोप क्या है इसकी? सर 5/4 y2 minus y1 divided by x2 minus x1 which is equivalent to y2 की वैल्यू है इस केस में स्लोप सर 5/4 ही होगा। सो y2 की इसमें क्या वैल्यू है, 7 minus 2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 minus 3 minus 3, so you'll have 5/4। ठीक है, सो स्लोप एक ऐसी लाइन है, इसकी स्लोप 5/4 है, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने इसकी लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो लीनियर इक्वेशन कहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने लाइन की लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक ऐसी लाइन है जो ए पॉइंट या बी पॉइंट से गुजर रही है और उसकी हमें स्लोप पता है। सो जब भी हम इसकी लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, सो लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीकाकार क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस b। हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपके पास इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर सेकंड तरीका कार क्या है, आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस b था जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, या पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या तरीका कार है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये दो मेरे पास इक्वेशन थी लाइन बनाने के लिए। ठीक है, सो मेरे लिए फेवरेबल ये है कि मैं इसमें से सेकंड इक्वेशन को यूज करूं। ये वाली इक्वेशन जो है ना हम इसमें यूज कर रहे हैं, दिस वाज द केस, ये वाला y माइनस, ये केस यूज करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। दिस इज द केस विच वी आर यूजिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि मैं किसी एक पॉइंट के अकॉर्डिंगली बाकी लाइन की वैल्यू को फॉर्म करूं। सो आई एम यूजिंग y1 एंड x1। इसमें y1 मेरे पास कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, सो मैं इसमें से इस पॉइंट को चूज कर लेता हूं। सो इसका मतलब है कि मेरे पास x1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है मेरे पास 2। जस्ट प्लगिंग दिस वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन, y माइनस y1 की वैल्यू यहां पे क्या है मेरे पास 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई विद x की वैल्यू आ रही एज इट इज माइनस x1 की वैल्यू है इसमें -3। सो विच इज, ये नजर आ रहा है सब लोगों को, ये ज्यादा नीचे तो नहीं चला गया, सर इससे नीचे नहीं। नीचे हो गया सर। इसको यहाँ ऊपर ले जाते हैं, ये लास्ट वाले को हम रब कर देते हैं। So going further ahead, so this is y minus y1 is equivalent to m multiply with x minus x1. So this will make
y minus 2 is equal to m is 5 divided by 4 whole multiplied with x minus x1 is minus 31 x minus x1 is minus 31. So solving this ahead, y minus 2. सर 31 3 है 31 नहीं है 3 है Oh, sorry, this is 3. This is not 31, this is 3. Y minus 3. So this will become 5 divided by 4 with x plus 3. So दोनों sides को 4 से multiply करते हैं. We will have 4y minus 8 is equivalent to 5 into x plus 3. So solving ahead, यहाँ से जो multiply हुआ था इसको divide कर देता हूँ मैं और दूसरी साइड पे ले आता हूँ. So this is something like so solving this ahead, this will 5x plus 15 ultimately हो जाएगा going to give you an equation which is this y 5x minus, minus 4y plus 23 आ रहा है. so ultimately you will going to have two equations. So this is y minus 7 is equal to 5 by 4. अच्छा ये हमारी एक इक्वेशन तो ये फॉर्म होगी. So you will have one equation over here. ठीक है जी. So एक आपके पास इक्वेशन ये फॉर्म होगी. आप इसकी बजाय ये भी कर सकते हैं कि आप दूसरा पॉइंट भी कवर कर सकते हैं. अभी मैंने इसमें कौन सा पॉइंट लिया था? मैंने अभी इसमें जो पॉइंट कंसिडर किया था वो मेरा पॉइंट कंसिडर किया था -3,2. आप इसमें पॉइंट ये भी ले सकते हैं 1,7 वाला. एक दफ़ा इसे 1,7 से करके देखते हैं. स्टिल याद रखें दोनों से जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम आएगा. सो मैं अब ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ. ए 1,7 वाला पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ. सो विच इज y माइनस y1. इस केस में क्या है आपके पास 7 is equivalent to m 5 by 4 multiply with x minus x1. x1 यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 equivalent है. So this is the second equation which you have. So the system could be formed either using the two equations. So इसको अगर आप further solve कर लें तो आपको पहले जो सिस्टम है ना उससे रिजल्टेंट मिलेगा. Let me just write this resultant from the first system from the book. So इसको अगर आप further solve कर लेते तो इससे आपको ये चीज़ मिलती 4y minus 28 is equivalent to 5x minus 5 या फिर 5x minus 4y is equal to minus 23. ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वलेंट है. ठीक सर ये है. नीचे से अभी शो नहीं हो रहा है. ओके ओके एक मिनट. स्लोप फॉर्म सर ये आप 7 कहाँ से ले आए y minus 7 ये नहीं समझ. तो ये मैं भी बताता हूँ. ये जो पहली वाली मैंने कंप्यूटेशन की है ना ये वाली जो सबसे पहले आपको कंप्यूटेशन नजर आ रही है ना ये इस पॉइंट से आई थी. b was -3,2. ये इससे कंप्यूट किया था हमने यहां तक. सेकंड जो कंप्यूटेशन है इसमें मैंने पॉइंट कौन सा कंसिडर किया a is equal to 1,7. जब मैंने a 1,7 कंसिडर किया है सो दिस इज इक्वलेंट टू ये नजर नहीं आ रहा आपको जी x minus 1. So this is y minus y1. y1 इस केस में क्या है आपके पास 7 की इक्वलेंट है is equal to m multiply with x minus x1. m is 5 by 4 multiply with x minus 1. So which is 4y minus 28 is equal to 5x minus 5.
सो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व कर लें, ये मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप इन इक्वेशंस को फर्दर डिड्यूस कर लें और अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर लें, सो जो फर्स्ट ये इक्वेशन है, आई एम कॉलिंग द इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन की जो फॉर्म बनती है वो आपके पास है जी, लेट मी सी फ्रॉम द बुक, वो है 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, एंड द सेकेंड इक्वेशन की जो फॉर्म बन रही है which is 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 23 की फॉर्म आ रही है। Okay जी, that is it for today. I hope that this clarifies your concept ये for the line. सर जी ये सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे, मुझे सही नहीं लग रही है क्योंकि 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। सेकंड पोजीशन ठीक है, मैंने चेक किया, मैंने वेरीफाई किया। सर ये 4 आएगा। कौन सा वाले? जो आपने सेकंड के ऊपर लिखा है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 23। 5x अगर- माइनस 4y, हाँ सॉरी 4y 5x माइनस 4y, दिस इज 4y, ये 4y होना चाहिए, ठीक है। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 23। I hope कि ये आप लोगों के this clarifies the concept for the slope of the line for you. I will have a recap just in a moment. हमने आज के लेक्चर पे स्लोप का देखा और हमने स्लोप की 3 टाइप्स देखी और हमने देखा कि एक सिंपल स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होती है, और फिर हमने स्लोप की केस में देखा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म के, और फिर हमने इसके 3